गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी लोगों का यूनिक कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम शेक्सपियर के बहुत से क्वेश्चंस आपको दिए हैं। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी जो बहुत इम्पोर्टेंट जो पिछले पेपर में आया भी है कई बार, कुछ उसके बारे में देखते हैं जो जॉन किट्स के बारे में है। दोस्तों, जॉन किट्स के भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं पीजीटी लेवल में। और ये पीजीटी में जो जॉन किट्स है वो उनको दिखाया गया है दोस्तों कि कम एज में ही उन्होंने अपनी ब्यूटी को अपनी सुंदरता को बिखेरा है। जैसे दोस्तों कोई पुष्प होता है, जैसे कुमुदनी का पुष्प होता है, वो थोड़े समय के लिए ही खिलता है लेकिन वो थोड़े समय में ही अपनी सुंदरता को दिखा देता है। तो दोस्तों, वो जॉन किट्स भी उसी कुमुदनी के पुष्प की तरह ही हैं जो कम समय तक जिंदा थे लेकिन कम समय में ही अपनी सुंदरता को बिखेरे हैं। दोस्तों, इनका जो जन्म था 1795 ईस्वी में हुआ था और 1821 ईस्वी में इनकी डेथ हो गई थी। माने 25 साल कुछ मंथ में ही इनकी क्या हो गई दोस्तों, डेथ हो गई थी जॉन किट्स की। माय फ्रेंड्स, John Keats was born on 1 October 1795, but 23 February 1821 he was died. He was an English poet of the second generation of Romantic poets, with Lord Byron and P.B. Shelley. His poems had been in publication for less than 4 years when he died of tuberculosis at the age of 25. मीन्स दोस्तों, इनकी जो डेथ थी वो कैसे हुई थी? ट्यूबरकुलोसिस से। दे वेयर indifferently received at his lifetime, but his fame grew rapidly after his death. By the end of century, he was placed in the canon of English literature, strongly influencing many writers of the pre-Raphaelite Brotherhood. My friends, he was born in Moorgate, London. Thomas and Frances Keats. There is a little evidence of his exact birthplace, although Keats and his family seem to have marked his birthday on 29 October. Baptism records give the date as the 31st. He was the eldest of 4 surviving children. His younger siblings were George, Thomas, and Frances Mary Fanny, who later married the Spanish author Valentin Linons Guttridge. His parents wished to send their sons to Eton or Harrow, but the family decided they could not afford the fees. In the summer of 1803, John was sent to board of John Clark's house. John Clark's school in Enfield, close to his grandparents' house. The small school had a liberal outlook and progressive curriculum, more modern than a larger. दोस्तों, in April 1804, when Keats was 8, his father died from a skull fracture after falling from his horse while returning from a visit to Keats and his brother George at school. Thomas Keats died intestate. Frances remarried 2 months later, but left her new husband soon afterwards, and the 4 children went to live with a grandmother, Alice Jennings, in the village of Edmonton. In March 1810, when Keats was 14, his mother died of tuberculosis, leaving the children of their grandmothers
custody. She appointed two guardians, Richard Abbey and John Sandel, for them. The Autumn kids left Clark's school to be an apprentice with Thomas Hammond, a surgeon and apothecary, who was a neighbor and the doctor of the Jennings family. दोस्तों अगर हम जॉन किट्स की बात करें तो ये बहुत ही, मैंने बताया दोस्तों कि कम एज में ही इनकी डेथ हो गई थी, और ये काफ़ी मात्रा में अपनी चीज़ों को इन्होंने डिपिक्ट किया है, जिसमें हम दोस्तों कुछ आगे पढ़ते हैं। जैसे दोस्तों लिखा हुआ है कि जॉन वेन, दोस्तों लिखा है कि वेन डिड किट्स डाई, मैंने ये कब मरे थे जॉन किट्स, तो मैंने दोस्तों पहले ही बता दिया था, ये 1821 में मरे थे। जॉन किट्स वाज born on 31 October 1795 and died on 23 February 1821 in Rome at the age of 25 and a half। कहने का मतलब दोस्तों 25 साल और कुछ मंथ में ही क्या हो गए थे, ये डाई हो गए थे, मतलब मर गए थे ट्यूबरक्लोसिस से। ये भी याद रखना है दोस्तों, कैसे मरे थे, ट्यूबरक्लोसिस से मरे थे। किट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ वन ऑफ हिज ओड्स, इट वाज फ्रॉम, माने दोस्तों ये कहाँ से ड्राफ्ट किया गया, ओड टू मेलंकोली से। ओड टू मेलंकोली किसने लिखा है दोस्तों, ये जॉन किट्स साहब ने लिखा है। आगे है दोस्तों, विच पोएम ऑफ किट्स हैज़ द फॉलोइंग लाइन्स, लिखा है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दूज अनबियर्ड आर स्वीटर देयर फॉर ई शार्प पाइप्स प्ले ऑन। दोस्तों ये कहाँ से है, ओडान ग्रेसियन अर्न से लिया गया है। ये दोस्तों जो ओडान ग्रेसियन अर्न्स, ये भी जॉन किट्स की एक ओड है, क्योंकि जॉन किट्स ने काफ़ी ओड लिखे हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, फॉर हुम किट्स यूज्ड द टर्म इपोलॉजिकल सबलाइम। अगर हम ईगोलिस्टिकल लिखा है दोस्तों, ईगो टिस्टिकल सबलाइम, तो ये दोस्तों कहाँ से है, ये वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ दिस इज नॉट ए वर्क बाय जॉन किट्स, तो इसमें से जॉन किट्स का कौन सा वर्क नहीं है दोस्तों, तो ओड टू ऑटम इन्हीं का है, आइजाबेला इन्हीं का है, द पार्ट ऑफ बेसिल भी इनका है। ये दोस्तों जो टू नाइट है ये इनका नहीं है, ये पीबी शैली का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्या दोस्तों, एफ स्कॉट फिट्जरल्ड was a great admirer of the poetry of John Keats, so much so that he named one of his novels with a line from one of the poems of Keats, which poem was it। इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि ये किसकी पोएम है, तो ये दोस्तों ओड टू नाइटिंगेल। इसमें कौन सा है दोस्तों, ओड टू नाइटिंगेल, माने ये पोएम कहाँ से है, ये दोस्तों ओड टू नाइटिंगेल से लिया गया है। आगे है दोस्तों, विच ऑफ जॉन किट्स फर्स्ट पोएम, जॉन किट्स की फर्स्ट पोएम कौन सी है दोस्तों, तो ऑन लुकिंग द चैम्पियंस ऑनर, ये दोस्तों होमर है, तो ये दोस्तों जॉन किट्स की पहली पोएम है। और उसके बाद है दोस्तों क्या, एंडीमियन बाय किट्स इज़ द स्टोरी ऑफ ए यंग शेफर्ड लव्ड बाय मून, गॉडेज किट्स टुक द स्टोरी फ्रॉम, ये दोस्तों कहाँ से है, ग्रीक मिथोलॉजी से लिया गया है। आगे है दोस्तों, टू सम ऑफ हिज कंटेम्पोरेरीज ही अपीयर्ड एज ए मेंबर ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोएट्री, तो इसमें दोस्तों कौन पढ़ा था, तो ये दोस्तों इसमें किट्स, जॉन किट्स जी ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, हु सेड, कौन कहा कि माई हार्ट एक्स एंड ए ड्राउनिंग नम्बनेस पेंस, तो दोस्तों ये जॉन किट्स ने ही कहा था। नेक्स्ट है दोस्तों, हु सेड अबाउट किट्स, माने किट्स के लिए कौन कहा कि ही इज विथ शेक्सपियर, माने वह शेक्सपियर जैसे के साथ हैं या शेक्सपियर जैसे है, तो दोस्तों ये कौन कहा था, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा था। उसके बाद है दोस्तों, किट्स पोएट्री इज एब्यूडेंटली एंड, लिखा है दोस्तों आगे क्या, ये इनकैंगली, फिर दोस्तों क्या है, सेंसस हु हैड मेड दिस कमेंट अबाउट द पोएट्री ऑफ किट्स, तो दोस्तों ये कौन किया था, ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने किया था। आगे क्या है दोस्तों,
अ लॉन्ग जो है रोमांस इंटाइल्ड इंडिमियन इज रिटेन बाई, तो ये दोस्तों ये किस में है, ये किट्स ने कहा था। जॉन किट्स वाज, ये कैसे पोएट रहे दोस्तों, ये हेलेनिस्टिक जो है पोएट रहे। इन द फॉल ऑफ जो है हाइपरियन अ ड्रीम किट्स sees a ladder leading upward and is addressed by a prophetess in the following words: none can usurp this light height but those to whom the miseries of the world are misery and will not let them rest who is prophetess। तो दोस्तों ये कौन था इसमें, ये जो है मोनेटा। किड्स ला बिली डेम सेंस मर्सी कंबाइंस टू जो है पोएटिक फॉर्म, तो ये दोस्तों कहाँ से है, ये आपका जो है ये फर्स्ट और सेकंड में, मतलब दोस्तों आपका कौन सा आएगा, लायरिक और ड्रामेटिक मोनोलॉग था। ये लायरिक का मतलब दोस्तों लिरिक और ड्रामेटिक जो है मोनोलॉग है। ये जो ला बिली डेम सेंस मर्सी है दोस्तों, ये 1819 में जो है बनाया गया था, कंपोज हुआ था जॉन किट्स के द्वारा। और इसका जो राइमिंग स्किल था दोस्तों क्या था, ए बी सी बी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, ये दोस्तों इंडिमियन की ओपनिंग लाइन है। तो ये इंडिमियन से है दोस्तों। इंडिमियन कब आया था, 1818 में आया था। आगे है दोस्तों व्हाट इज द जो है क्लोजिंग लाइन ऑफ किट्स ओड टू ए नाइटिंगेल, तो ये क्लोजिंग जो है ओड कौन सा है दोस्तों, इनकी है फ्लीड इज दैट म्यूजिक डू आई वेक और स्लीप। आज के लिए दोस्तों इतना ही। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो इसका जो है जॉन किट्स के बारे में अगले दिन दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है धन्यवाद।